Hi friends, I am Ram Patil. Welcome to my channel, my guru. Subscribe to my channel, like my videos and don't forget to press the bell icon so you can get the regular notifications. So in today's video, we will going through the topics Porter Governor, important formulas for problem and numerical solving. So let's go through it. Hi friends, today's our topic is on Porter Governor, important formulas for problem and numerical solving. सो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियोस लेकर आता हूँ वो वीडियोस में जो टॉपिक होते हैं वो मैं आपको डिटेल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, वो डीपली होती है। यदि मुझे नहीं लगता कि यदि आपने मेरे ऑल वीडियोस अच्छी तरह से देख लिए तो आपको कुछ अलग तरीके से स्टडी मटेरियल रेफर करना होगा। और यदि आपको डिटेल में पढ़ना ही है तो मैं आपको एक टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक मैं आपको रेफर करूँगा। थ्योरी ऑफ मशीन के लिए बेस्ट बुक आई एवर सीन दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन बाय आर.एस. खुरमी। सो ये जो थ्योरी ऑफ मशीन का आर.एस. खुरमी वेरी बेस्ट बुक है। आप उस बुक से डिटेल में ऑल टॉपिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन कवर कर सकते हैं। So the Porter governor is Porter governor is divided into Porter governor formulas are divided into two cases. So the first case, when the length of the arms are equal to the length of the links and the point P and D lie on the same vertical line or spindle axis. See, when the arms, these are the arms, see these are the arms and these are the links. When arms and links are equal and the point P and the point D lie on the same vertical line. See यहाँ पे point P और point D same vertical line पे lie किया है, इसे हम spindle axis भी कहते हैं। और जब इस केस में arms and links are equal होते हैं, in that case एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। फॉर्मूला क्रिएट होता है, so therefore in that case tan of alpha is equal to, we can say the tan of alpha is equal to tan of beta. See, because arms and links are equal and point P and point D lie on the same spindle axis, that's why tan of alpha is equal to tan of beta हम कह सकते हैं। और we can say Q, so Q is the ratio of tan of alpha upon tan of beta. So it is the ratio of the same quantities, ये दोनों इक्वल है, सेम क्वांटिटी, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 1. So Q will be 1. So speed is given by, so Porter governor speed is given by formula n square is equal to small m plus capital M divided by small m into 895 upon h. So this is the standard formula to calculate the speed of Porter governor for केस 1. जब भी केस 1 इस तरह से कंस्ट्रक्शन आएगा तो इस केस में हम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए दिस फार्मूला यूज करेंगे। वी कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड इन केस फर्स्ट। नाउ सी, दिस इज द सेकंड केस। व्हेन द लोडेड स्लीव मूव्स अप एंड डाउन द स्पिंडल, द फ्रिक्शनल फोर्स acts in opposite direction of motion of C. See, look at this diagram. Fc is the centrifugal force, small w is the weight of the fly ball, capital W is the weight of sleeve. So see, when the sleeve goes downward direction, the frictional force will act in opposite direction of motion of sleeve. जब भी sleeve downward direction में होता है, so W is the weight of sleeve डिवाइडेड बाय कैपिटल mg। जब भी यहाँ पे स्लीव होता है, देखो जब भी स्लीव डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो
उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्लीव। ओके, और जब भी स्लीव अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दीज आर द टू कंडीशन, स्लीव मूव्स अप एंड डाउन द स्पिंडल। So first of all we will consider the down case. So first of all we will consider the upward case. So when the sleeve moves in upward direction, the frictional force will act in downward direction. Frictional force generated by capital F. Okay, and the maximum speed is given by speed given by n square is equal to small mg plus in bracket capital M into small g plus f by 2 into 1 plus q. We know the ratio, q क्या होता है, tan alpha upon tan beta होता है, whole term divided by small mg into 895 upon h. So this is the formula for maximum speed given by this formula n square mg plus m c. अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, मैक्सिमम स्पीड बोला है तो मैक्सिमम स्पीड है तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि मैक्सिमम स्पीड मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, कीप इट इन माइंड, मैक्सिमम स्पीड मतलब पॉजिटिव साइन। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, when the sleeve moves in downward direction, see when this sleeve moves in downward direction the frictional force will act in upward direction. स्लीव जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इन दैट केस मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय फार्मूला, सेम फार्मूला है, जस्ट आपको साइन चेंज करना है, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी। सिर्फ यहाँ पे प्लस के जगह पे मिनिमम स्पीड है इसीलिए क्या आएगा, माइनस आएगा, कीप इट इन माइंड। एफ डिवाइडेड बाय 2 पैकेट कंप्लीट 1 प्लस क्यू whole bracket divided by mg into 895 upon h. So look at this chart. When the sleeve moves up the speed is maximum. देखिए जब भी स्लीव ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रहा है मीन्स पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। बढ़ रहा है ना तो यहाँ पे हम बढ़ाने के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। सी दिस इज द सिंपल ट्रिक टू रिमाइंड दिस फार्मूला। यदि आप इसे कितना भी रटोगे तो ये आपके ध्यान में नहीं आएगा और आप बाद में मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए आप इसे ना रटें, इसे आप एक टेक्निकल एक ट्रिक की तरह से ध्यान में रखिए। जब भी स्लीव ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा तो स्पीड बढ़ेगा, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगा, और जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ स्लीव। इफ स्लीव मूव्स अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट द स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला, n square is equal to mg plus capital M small g plus f by 2 and bracket 1 plus q. q is the ratio of tan alpha upon tan beta. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, इट इज द रेशियो ऑफ tan alpha upon tan beta,
होल टर्म डिवाइडेड बाय स्मॉल mg इंटू 895 अपॉन h। सो सिंपली आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि स्लीव ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, व्हेन स्लीव्स मूव्स डाउनवर्ड स्पीड इज मिनिमम। जब भी स्लीव नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड कम हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्लीव। तो स्पीड मिनिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है मीन्स कुछ तो घट रहा है मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। सो द फॉर्मुलेशन फॉर इज n स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg माइनस f। ओनली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, बाकी सब फॉर्मुलेशन सेम है। 1 प्लस की होल टर्म डिवाइडेड बाई mg इंटू 895 अपॉन एच। सी इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं और इसे आप कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। यदि आप इसे कंपैरेटिवली स्टडी करो देन एंड देन यू विल कंसिडर रिमाइंड इट फॉर लॉन्ग टाइम, नहीं तो आप इसे भूल सकते हैं। इसलिए आप कंपैरेटिवली स्टडी करिए, इससे आपको बेनिफिट होगा।